Hello everyone. In previous session we seen thyroid, parathyroid and thymus gland. Now we will move on our next topic. The topic name is adrenal gland, its function and disorder due to its deficiency. So first of all, the location of adrenal gland. You all aware about the adrenal gland. This is our kidney, right? And above our kidney, upper side of our kidney, adrenal gland is located. But according to area, adrenal gland had two regions, middle part that is called adrenal medulla and outer part that is called adrenal cortex, and each area have their own different hormones and its function. So let us see in detail. So location of adrenal gland. Our body has one pair of adrenal glands, one at the anterior part of each kidney. The gland is composed of two types of tissue. The centrally located tissue is called the adrenal medulla and outside that is called adrenal cortex, right? जो मैंने आपको बताया. अब first of all we will see the hormone of adrenal medulla. Adrenal medulla secrete two hormone that is called adrenaline and noradrenaline or epinephrine and norepinephrine. सो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. अगर मेडुलर रीजन के जो हार्मोन की हम बात कर रहे हैं तो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, राइट, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज ए कैटेकोलेमाइंस. के सबको दोनों को हम साथ में क्या बोल सकते हैं? कैटेकोलेमाइंस. Adrenaline and noradrenaline are rapid secreted in response to stress of any kind and during emergency situation. कि एड्रेनालिन नॉरेड्रेनालिन क्या कब सिक्रेट होता है? कि कोई अब स्ट्रेस की कंडीशन आ गई हो या फिर इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई हो तब रिलीज़ होता है. ऑलमोस्ट हम बात करें कि अब आप अगर कहीं जा रहे होते हो, राइट, और बीच में कोई टाइगर या लायन खड़ा रहे तो आपकी सिचुएशन क्या होगी? तो तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं. सो दे आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. दैट इज व्हाई दिस हार्मोन नोन एज इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, राइट. सो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है. व्हाट इज इमरजेंसी हार्मोन? तो आपको याद रखना है कि adrenaline and noradrenaline are rapid secreted in response to stress of any kind and during emergency situation. That is why they are called emergency hormones or we can say hormones of fights and flights. These hormones increase alertness, pupillary dilation, piloreation means raising of heads, sweating etc. इसके सिम्टम्स है कि ये हार्मोन जब सिक्रेट होता है तब क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या चेंजेस होता है वो है. दूसरा, बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंस्ट्रक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. कि जब ये हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं तब हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, जो हार्ट कंस्ट्रक्शन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, राइट. सो दिस ऑल अबाउट कैटेकोलेमाइंस और वी कैन से इमरजेंसी हार्मोन. Catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen, resulting in an increased concentration of glucose in blood. कि कैटेकोलेमाइन क्या करता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है. और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ऑब्वियसली ग्लूकोज में. तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है. दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं, साथ में लिपिड एंड प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन्स होता है, राइट. सो दिस ऑल अबाउट द मेडुलरी हार्मोन्स. देयर आर टू हार्मोन्स विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल मेडुलर रीजन, adrenaline and noradrenaline. They are commonly called as a catecholamines or we can say emergency hormone or we can say hormones of fights or fights. Now we will move on our next topic, adrenal cortex, right. Adrenal cortex structurally divided in three layers. Inner layer that is called outer layer that is called zona glomerulosa, middle layer that is called zona fascicularis and inner layer that is called zona reticularis, right. And this secretes corticoids. They secrete corticoids. There are two types of corticoids.
Glucocorticoids and mineralocorticoids. Glucocorticoid in form of cortisol and mineralocorticoids in form of aldosterone. Right? क्या याद रखना है आपको कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो कॉर्टिजोल फॉर्म में होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो आल्डोस्टेरोन फॉर्म में होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड? रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन अवर body. So let us see in detail the function of aldosterone. Aldosterone is the main mineral corticoid in our body. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis. Gluconeogenesis means what? Formation of glucose. Formation of glucose. Lipolysis means breakdown of lipid. Proteolysis means breakdown of protein. Right? Very easy terminology. Gluconeogenesis means formation of glucose. Lipolysis means breakdown of lipid. Proteolysis means breakdown of protein and inhibit cellular uptake and utilization of amino acid. Then दूसरा क्या फंक्शन करता है? cortisol. Cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system as well as kidney function. cortisol जो है वो दो मेन हमारे जो ऑर्गन है उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, हार्ट एंड किडनी. देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड particularly cortisol produce anti-inflammatory reaction and suppress the immune response. कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमको इम्यून रिस्पॉन्स भी देते हैं. also cortisol stimulate the RBC production. कि also cortisol stimulate the RBC production. then डिटेल में आपको दिया है about aldosterone. Aldosterone act as mainly at the renal tubule and stimulate the reabsorption of Na plus water, right, and excretion of K plus and phosphate ion. कि aldosterone one kind of mineralocorticoid which is secreted from adrenal cortex, right. It function, it stimulates reabsorption of water and Na plus and excretion of potassium and phosphate ion. Thus aldosterone helps in maintenance of electrolytes, बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर की चार चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेनेंस, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का मेंटेनेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेनेंस एंड ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस. स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रोजेनिक जो स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड दो तरह के हमने पढ़े, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड. बट अनदर कॉर्टिकॉइड हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ऑल्सो अगर स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, राइट, एड्रिनल कॉर्टेक्स में से, तो विच प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. कि प्यूबर्टी लेवल पे जो भी सिम्टम्स होने चाहिए वो ग्रो होते हैं. सो लेस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स चेंज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यू टू विच वीकनेस एंड फैटिग्यू इज ऑब्जर्व. कि जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का प्रोडक्शन लेस हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से हमको थकान और वीकनेस लगती है. एंड दिस डिजीज नोन एज एडिसन्स डिजीज. दिस डिजीज नोन एज एडिसन्स डिजीज, राइट. सो हमको यहाँ एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसमें स्ट्रक्चर में दो रीजन, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल मेड्यूला में दो हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, और इसका फंक्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर उसके स्ट्रक्चर में. उसके बाद वन हार्मोन कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स भी दो तरह के होते हैं, अल्फा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड बीटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड. और उसका फंक्शन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम शॉर्ट में कॉर्टिजोल भी बोल सकते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड को शॉर्ट में अल्डोस्टेरोन भी बोल सकते हैं, राइट. उसके बाद आपको दिया है पेंक्रियास. और पेंक्रियास के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके होंगे
जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तब, बट यहाँ पेंक्रियास डिटेल में दिया है। पेंक्रियास इज अ कंपोसाइट ग्लैंड विच एक्ट्स both exocrine and endocrine gland. Why pancreas called as a exocrine and endocrine gland? एंडोक्राइन ग्लैंड इसीलिए बिकॉज उसमें से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन विच मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। एंड एक्सोक्राइन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट पजेस बेसिक एंजाइम्स, राइट, basic enzyme which helps in digestion of food, so that is why they called as exocrine and endocrine gland. Endocrine pancreas consists of isolate of Langerhans, 1 to 2 million isolate of Langerhans in normal human pancreas, which is represented only 1 to 2% of pancreas tissue. Main two types of cell of isolate Langerhans are alpha cells and beta cells. Alpha cells release hormone glucagon while beta cells secrete insulin. और आपको पता होगा कि ग्लूकागोन हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, एंड इंसुलिन डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो हियर यू हैव गिवन द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन. Glucagon is the peptide hormone, means made up of protein and play an important role in maintaining normal blood glucose level, right? Exactly क्या फंक्शन करते हैं वो यहाँ आपको दिया है. लेट अस सी. Glucagon acts mainly on liver cells and stimulate glycogenolysis. Glycogenolysis means what? Glycogen converts into glucose, that is called glycogenolysis, and resulting in an increased blood sugar, and that situation known as hyperglycemia. कि ग्लूकागोन जब लीवर सेल्स पर फंक्शन करते हैं, ओके, सो ग्लूकागोन लीवर सेल पे फंक्शन करते हैं और ग्लूकोजिनोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें फंक्शन करते हैं, जिससे बॉडी में शुगर, ब्लड में शुगर बढ़ता है. दैट सिचुएशन नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया. इन एडिशन इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोसेस ग्लाइकोनियोजेनेसिस मीन्स व्हाट? सॉरी, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स व्हाट? Formation of glucose. Means what? Formation of glucose, right? So which also contribute to hyperglycemia. कि वो भी क्या करता है? हाइपरग्लाइसेमिया की प्रोसेस मीन्स ग्लूकोज बढ़ाता है. सो ग्लूकागोन रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. कि जो भी ग्लूकागोन हार्मोन है वो सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन क्या करता है? रिड्यूस होता है, जिससे क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया की प्रोसेस. एंड दैट इज व्हाई ग्लूकागोन इज known as a hyperglycemia hormone, right? So this all about glucagon. Now हम इंसुलिन की बात करेंगे कि इंसुलिन also it is a peptide hormone which play a major role in regulation of glucose homeostasis, right? Insulin acts mainly on hepatocytes and adipocytes. कि इंसुलिन जो है वो हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स के पे फंक्शन करते हैं एंड एनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक. कि इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, उन पे वो जो सेल्स होते हैं उन पे फंक्शन करते हैं एंड सेलुलर अपटेक बढ़ाते हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक करवाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड to hepatocytes and adipocytes, resulting in decreased blood glucose level, and that is called hypoglycemia. क्या होता है कि एडिपोसाइट्स और हिपेटोसाइट्स है तो सेलुलर ग्लूकोज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? हिपेटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स पे, राइट? सो रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, एंड बाय दिस वे डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिया.
इट ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, कि इससे क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, राइट। ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस इन टारगेट सेल्स। सो द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन जॉइंटली टू इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, की ग्लूकोज लेवल जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन से मेंटेन होता है। सो प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, कि अगर हाइपरग्लाइसेमिया ज़्यादातर रहेगा लॉन्ग टाइम तक, तो हमको एक डिसीज़ होता है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compound known as ketone body. So diabetic patients are successfully treated with insulin therapy, right? And with this our chapter completed and also our syllabus will be completed. जो भी टेस्टिस और ओवरी ग्लैंड और अदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन दिए हैं उसमें से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका फंक्शन, देन फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, फंक्शन ऑफ हार्मोन, वो सब हमने नहीं पढ़ाया है बिकॉज टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में आपको डिटेल में 12th में आने वाला है। सो अभी जो है वही आपको डिटेल में 12th में आएगा और अभी जो दिया है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, दैट इज़ वाई हमने वो चलाया नहीं है। सो इसी के साथ हमारा ये सिलेबस और हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, राइट। अगर कोई डाउट हो तो आप कोई भी टाइम पे आप हमें डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो और इसी के साथ हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। एंड 3rd में से आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। सो अच्छे से ऑनेस्टली पेपर लिखना, जब भी सबमिशन करवाना हो तो सबमिट करवा देना, और अगर कोई प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू कॉल मी, राइट, एज ए क्लास टीचर। एंड आपकी एग्ज़ाम आ रही है, सो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और 21 और 22 चैप्टर की जो टेस्ट PDF है वो इस वीडियो के दूसरे दिन आपको मैं भेजूंगी, अच्छे से टेस्ट देना। और अभी तक जो भी हमने टेस्ट PDF भेजी है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। सो प्लीज़ और कुछ ना करें तो जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो, और रिड्यूस सिलेबस नहीं करना है, सिवा उसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो, और हमने जो अभी तक जो टेस्ट PDF सभी चैप्टर की पहले फिर बाद में भेजी है वो सब आपको लर्न करनी है, तो आराम से आप अच्छे से 70 to 75% ला सकते हो, राइट। सो विथ दिस यहाँ हम हमारा ये सेशन कंप्लीट करते हैं, राइट। सो एग्ज़ाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।